3 بجے کے بلیٹن میں ہیڈ لائنز آپ نے جان لی ہے. خبروں کی تفصیل آپ کو دیں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان حکومت کا دھماکوں پر 3 روزہ سوگ کا اعلان سامنے آیا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی کا اعلان، کہتے ہیں دھماکوں کے باوجود الیکشن کا عمل جاری رہے گا. بلوچستان کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو کچل دیں گے. نگران وزیر داخلہ میر زبیر جمالی نے کہا کہ بزدلانہ کارروائیوں سے دہشت گردی کے خلاف عزم متزلزل نہیں ہوگا. دشمن پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے درپے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 3 دن سوگ کا اعلان کیا ہے. ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک سکھ کا سانس نہیں لیں گے اور ان کے خلاف ہماری یہ جنگ جاری رہے گی. یہ الیکشن کل ہر صورت میں ہوں گے. آج کے واقعات کی ایک ہی مقصد ہے کہ الیکشن کو سبوٹاج کیا جا سکے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان واقعات کے باوجود بھی کل انشاءاللہ یہ الیکشن ہوں گے. دھماکے کے بارے میں آپ نے جانا. ابھی اہم خبر ہے، الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں دھماکوں کا نوٹس لے لیا ہے. چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان سے فوری رپورٹ طلب کی گئی ہے. بلوچستان میں دھماکوں پر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس آج شام طلب کیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر بلوچستان دھماکوں سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیں گے اور اجلاس میں 4 صوبائی الیکشن کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کریں گے. الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں دھماکوں کا نوٹس لے لیا ہے. چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان سے فوری رپورٹس طلب کی گئی ہیں. بلوچستان میں دھماکوں پر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس آج شام ہی طلب کر لیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر بلوچستان دھماکوں سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیں گے. اجلاس میں 4 صوبائی الیکشن کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے. یہ جو اجلاس ہوگا اس میں اب 4 صوبائی الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے. اور بلوچستان میں دھماکوں پر الیکشن کمیشن نے آج ہنگامی اجلاس آج شام ہی طلب کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر بلوچستان دھماکوں سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیں گے. جو دھماکے ہوئے بلوچستان میں آج ووٹنگ سے 1 دن پہلے 2 دھماکے ہوئے ہیں بلوچستان پہ، اور ان دونوں دھماکوں کی زد میں آ کر 24 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. اسی پر الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں ان دھماکوں کا نوٹس لیتے ہوئے آج شام کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. بلوچستان میں دھماکوں پر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس آج شام ہونے جا رہا ہے. صدر مملکت وزیر اعظم کی بلوچستان میں دھماکوں کی شدید مذمت. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. پرامن الیکشن کو خراب کرنے کی کوششوں کو ہم ناکام بنائیں گے. حکومت عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے پرعزم ہے. شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان کی بلوچستان میں دھماکوں کی مذمت. انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس، رینجرز اور پاک فوج کے دستے تعینات ہوں گے. 5,96,618 اہلکار الیکشن ڈیوٹیز سر انجام دیں گے. پولیس کی مجموعی طور پر 4,65,736 اہلکار تعینات کیے جائیں گے. کوئک رسپانس فورس کے 1,06,942 اور 23,940 سیکیورٹی اہلکار مستقل طور پر الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اسی بارے میں اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ووٹرز کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم. الیکشن کمیشن کی درخواست پر عام انتخابات کے پیش نظر ملک بھر میں کوئک رسپانس فورس کے 1,06,942 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ 23,940 سیکیورٹی اہلکار مستقل طور پر الیکشن کے دوران ڈیوٹی سر انجام دیں گے. عام انتخابات کی نگرانی کے لیے پاک فوج سول آرم فورسز کے مجموعی طور پر 1,30,882 اہلکار مامور ہوں گے، جبکہ ملک بھر میں پولیس کے 4,65,736 اہلکار فرائض سر انجام دیں گے. رپورٹ کے مطابق 8 فروری کو آرمی، سول آرم فورسز اور پولیس کے مجموعی طور پر 5,96,618 اہلکار تعینات ہوں گے. صرف پنجاب میں الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس کے 2,16,000 اہلکار ڈیوٹی دیں گے. سندھ میں 1,10,720، KPK میں 92,535، جبکہ بلوچستان میں 46,481 پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اور الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا. PTA نے اعلان کر دیا ہے انتخابات کے دن انٹرنیٹ کی سہولت صارفین کو میسر ہوگی. ترجمان PTA کہتے ہیں کہ کل انٹرنیٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرے گا.
मुल्क भर में आम इंतखाबात का मैदान सजने में सिर्फ एक ही रोज़ बाकी है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद उम्मीदवार पंजा आजमाई कर रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी हिसार में DROs को बैलेट पेपर्स फ्राहम कर दिए गए हैं। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। 7 लाख बैलेट बॉक्स, 2,76,000 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। 16,766 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 29,985 हसास करार दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। सख्त सिक्योरिटी हसार में DROs को बैलेट पेपर्स फराहम कर दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील का अमल भी शुरू हो गया है। 8 फरवरी को 12 करोड़ 85 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की सहूलत के पेश नजर इस रोज मुल्क भर में आम तातील का भी ऐलान कर रखा है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17,000 से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें खवातीन और ख्वाजा सरा भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,76,398 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 16,766 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास जबकि 29,985 को हसास करार दिया गया है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर पाक फौज तैनात की जा रही है, जबकि पोलिंग स्टेशनों पर अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल के इख्तियारात दिए। इलेक्शन नताइज की तरसील और तदवीन के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील, गिनती और इसकी रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक वापसी के लिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान की होगी। हर 4 में से 3 पाकिस्तानी इंतखाबी नताज को कबूल करने को तैयार हैं। एप्सिस और पाकिस्तान पल्स ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। ताज़ा सर्वे में 76% पाकिस्तानियों ने कहा है इंतखाबी नताज को तस्लीम करेंगे। सिर्फ 7% का कहना था कि नताज कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के 94%, नून लीग और जमात इस्लामी के 87, जबकि PTI के 67% वोटर्स का नताज पर रजामंदी का इजहार सामने आया है। पंजाब में 78%, सिंध में 74%, खैबर पख्तूनख्वा में 79% वोटर्स नताज कबूल करने को तैयार हैं। सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद के 40% वोटर्स ने इंतखाबी नताज को मानने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इंतखाबी नताइज कौन कबूल करेगा और कौन मुस्तरद? आम इंतखाबात से कबल नया सर्वे जारी। गैर मुल्की इदारे अफसोस और मकामी तंजीम पाकिस्तान प्लस के इश्तराक से किए गए सर्वे के मुताबिक हर 4 में से 3 पाकिस्तानी इंतखाबी नताइज कबूल करने को तैयार हैं। मजमूई तौर पर 76% वोटर्स ने कहा है कि वो इंतखाबी नताइज तस्लीम करेंगे। सिर्फ 7% का कहना था कि वो नताइज को कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों के एतबार से किए गए जायजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 94%, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के 87 और PTI के 67% वोटर्स इंतखाबी नताइज तस्लीम करेंगे। नताइज तस्लीम करने पर आमादा वोटर्स की 77% तादाद का ताल्लुक देही इलाकों जबकि 74% का शहरों से है। उम्र के लिहाज से 18 से 24 साल के वोटर्स में से 72% ने नताइज मानने जबकि 11% ने मुस्तरद करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब 51 से 65 साल की उम्र के वोटर्स में इंतखाबी नताइज कबूल करने का रुझान 82% और ना मानने का रुझान महज 7% है। इलाकाई सतह पर सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के 89% वोटर नताइज कबूल करने को तैयार हैं, जबकि ना मानने वालों की शरह सिर्फ 4% है। पंजाब में नताइज तस्लीम करने वालों की तादाद 78 और मुस्तरद करने वालों की 6, जबकि सिंध में तस्लीम करने वालों की 74 और ना मानने वालों की 11% है। इंतखाबी नताइज मुस्तरद करने का फैसला करने वाले वोटर्स की सबसे ज्यादा तादाद 40% वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में है। वेलकम बैक। इलेक्शन दंगल सजने में चंद ही घंटे बाकी हैं। पोलिंग कल होगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। लाहौर के 18 मकामात से पोलिंग के सामान की तरसील की जा रही है। पोलिंग के सामान की तरसील का अमल आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे लाहौर से इस वक्त शाहिद हनीफ हमारे साथ हैं। शाहिद हनीफ, जो पोलिंग का सामान है और उसकी तरसील का अमल आज रात तक मुकम्मल किया जा रहा है, मज़ीद क्या इंतज़ामात हैं, क्या लाहौर के अंदर, आप हमें अपडेट करेंगे? जी, इलेक्शन की तैयारियां जो है वो आखिरी मराहल में जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। आज 12 बजे का आज रात तक टाइम है। तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो RO ऑफिस से पोलिंग का जो सामान है वो लेके डिफरेंट जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पहुँचाएंगे। तो 18 मकामात से जो है वो सामान की तरसील की जा रही है और सामान में जो है वो
बैलेट पेपर हैं, बैलेट बॉक्स हैं, इसके अलावा जो है स्टेशनरी का सामान है। तो ये प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है, वो पोलिंग स्टेशन में जो है वो वहाँ पे भिजवा रहे हैं। तो अब जो है लाहौर की बात करें तो सबकी नज़रें इलेक्शन पे तो हैं, लेकिन लाहौर को सबसे ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है, सबसे बड़ा ज़िला इसी को कहा जा रहा है। 14 नशिस्तों पे जो है कौमी असम्बली के जो है वो कांटेदार मुकाबले देखने में आ रहे हैं। इसमें जो है 266 जो उम्मीदवार है वो एक आमने सामने है। इसके अलावा जो है सूबाई असम्बली जो 30 नशिस्तें हैं उस पर जो है 844 जो उम्मीदवार हैं एक दूसरे के मुकाबले में जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी गहमा गहमी लाहौर में जो है देखी गई। इस पे जो है आईजी पंजाब और आपसे ये जानना चाहते हैं कि इंतजाम के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे हैं, जो लाहौर का वोटर है वो कल के इन इंतखाबात को लेकर के, पोलिंग के अमल को लेकर के कितना एक्साइटेड है, वोटर्स के क्या तासुरात हैं? जी, वोटर काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहा है, क्योंकि जितनी इलेक्शन सरगर्मियां हमने कवर की हैं, जितने जलसे देखे हैं, काफ़ी कैंपेन जो है कारकुनान जो है अपने लीडरान के हक में नारेबाजी करते और कैंपेन करते काफ़ी जो है नज़र आ रहे हैं। सबको कल का इंतज़ार है। सुबह होते ही जो है अभी भी तमाम हलकों में जो है प्लानिंग की जा रही है उम्मीदवारान की सरपरस्ती में, किस तरह सुबह निकलना है, वोटर्स को जो है निकालना है। तो इंतज़ार किया जा रहा है, चंद घंटे बाकी हैं। सब जो है वो हमारी स्क्रीन पर देखेंगे किस तरह जो है कारकुनान निकलते हैं और अपने उम्मीदवारान के लिए जो है वो वोट डालते हैं और वोट डलवाते हैं। तो अभी जो है सिक्योरिटी की बात करें तो जो है 1,30,000 जो जवान वो पूरे पंजाब में सिक्योरिटी के पुलिस जवान फराइज सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स भी काफ़ी अच्छी की गई हैं कल के इस पोलिंग के अमल को लेकर के। बहुत शुक्रिया शाहिद हनीफ, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में पोलिंग सामान की तरसील का अमल जारी है। फौज और रेंजर्स की कड़ी निगरानी में इंतखाबी सामान मुतल्लिका अफसरान के हवाले किया जा रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे। मुल्क भर में हमारे नुमाइंदान इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे साथ हैं। लोधरा से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मिराजुद्दीन, विहाड़ी से मुनव्वर हुसैन होंगे, डीजी खान से जौहर अमीन, हरीपुर से तारिक महमूद, अपर दीर से शीरी हजरत और डेरा भुगटी से फैज भुगटी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं डेरा भुगटी का और तफसीलात जानते हैं फैज भुगटी से। फैज, आप बताइएगा क्या पोलिंग सामान की तरसील हो चुकी है और अमले ने फराइज संभाल लिए हैं, क्या सूरत हाल है? डेरा खान में भी इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी मटीरियल की तकसीम का अमल 1.5 घंटे की ताखीर के बाद बिलाखिर शुरू हो चुका हुआ है। इस वक्त हम लोग डेरा गाजी खान के बलोच लेवी में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ सूबाई और कौमी असम्बली के जो हल्कों के ऊपर जो इंतखाबी मटीरियल की तरसील का अमल है वो शुरू कर दिया गया। अगर मैं डेरा गाजी खान के 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली के हल्कों के रजिस्टर वोटर की बात करूं तो 12,36,098 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द जो है 6,69,518 हैं। इस वक्त डेरा गाजी खान में अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी भी उसके हवाले से भी हतमी शक्ल दे दी गई है और इंतखाबी जो मटीरियल का अमल जो तकसीम का है वो शुरू हो चुका हुआ है। जी ठीक है फैज, आप हमारे साथ ही रहेगा। लोधरा का रुख करेंगे। लोधरा से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मिराजुद्दीन। मिराजुद्दीन, आप क्या अपडेट करेंगे, क्या समा है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लोधरा में भी कल जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ज़िला भर में 2 कौमी और 4 सूबाई हल्कों में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ज़ेर निगरानी में रिटर्निंग अफसरान ने आज सुबह 10 बजे से ही प्रिजाइडिंग अफसरान में पोलिंग के सामान की तरसील का अमल शुरू कर दिया, जो कि शाम तक मुकम्मल किया जाएगा। पोलिंग सामान की वसूली के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान पुलिस सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे और पोलिंग बूथ कायम करेंगे। दूसरी तरफ डीआर और डिप्टी कमिश्नर अब्दुर्रऊफ मेहर की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग की सूरत में मुतबादिल इंतजामात और पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हदायत भी जारी कर रखी हैं। जी ठीक है मिराजुद्दीन, आप हमारे साथ रह गए। विहाड़ी का रुख करते हैं। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रोजाना हमारे साथ हैं। मुनव्वर, आप बताइएगा विहाड़ी में इस वक्त जो विहाड़ी का वोटर है वो कितना एक्टिव है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह अगर बात की जाए विहाड़ी की, तो विहाड़ी में भी इलेक्शन 2024 जो है वो कल होने जा रहा है। इस हवाले से आपको बताऊं कि ज़िला विहाड़ी में 4 कौमी और 8 सूबाई हल्कों पर कल जो इंतखाबात का अमल है वो होने जा रहा है। इस हवाले से आज यहाँ पर इस वक्त जिस सेंटर पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पोलिंग का जो सामान है वो उनके हवाले किया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताऊँ कि पोलिंग के जो बैलेट बॉक्स हैं, जबकि इसके अलावा जो स्क्रीनें हैं, इसके अलावा जो दीगर सामान है वो इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले किया जा रहा है। पंजाब पुलिस के अलावा पाक फौज के जो जवान हैं वो भी मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर तैनात किए जाएंगे, ताकि इलेक्शन को साफ शफाफ बनाया जाए और किसी भी नागहानी सूरत हाल में वहाँ पर बर वक्त काबू पाया जाए। मुनव्वर, आप हमारे साथ रहेगा। हरीपुर का रुख करते हैं। तारिक महमूद हरीपुर से हमारे साथ हैं। तारिक, आप क्या अपडेट करेंगे?
जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में इस वक्त मैं हरिपुर में मौजूद हूँ। N18, PK 44, PK 47 और PK 48 के दूर दराज के इलाकों के लिए इलेक्शन कैंपेन का जो सामान है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि नहायत उम्दा तरीके से सामान की तरसील की जा रही है। यहाँ पे बैलेट बॉक्स हैं, बैलेट पेपर्स हैं, इसके अलावा जो दीगर सामान है वो इलेक्शन जो कैंपेन के सिलसिले में बैठे हुए लोग हैं, आरओज़ हैं, उनकी मौजूदगी में सामान दिया जा रहा है। पुलिस के अलावा दीगर जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सामान की तहसील का सिलसिला ये जल्द अज जल्द अपने पाए तक मील तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि लोग दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं, वो बरात अपने इलाकों तक पहुँच जाएँ। जी अपर दीर का रुख करते हैं। शीरी हजरत हमारे साथ हैं। शीरी, इस वक्त अपर दीर में कल के पोलिंग के अमल को लेकर के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, और ये भी बताइएगा जो अपर दीर का वोटर है वो कितना एक्टिव नजर आ रहा है, कितना चार्ज है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पे दीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में यहाँ पे मौजूद हूँ और पोलिंग स्टेशनों को सामान की तरसील के बारे में यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इंतजामात किए गए हैं, जो कि ज़िली इंतज़ामिया दीर अपर और इलेक्शन कमीशन ऑफिस की तरफ से ये इंतजामात किए गए हैं, जो कि पोलिंग अमले और पोलिंग स्टेशन के तमाम अमले की रवानगी के लिए यहाँ पे इंतजामात किए गए। उन्हें बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर जो है वो हवाला किए जाएंगे, और जब तक यहाँ से पोलिंग स्टेशनों तक मुकम्मल अमला जो है वो रवानगी मुकम्मल नहीं की जाएगी, तब तक ये सिलसिला यानी ये इंतजामात यहाँ पे जारी रहेंगे। ठीक है शीरी, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे डीजी खान से जौहर अमीन भी हमारे साथ हैं। जौहर, आप क्या अपडेट करेंगे? जी, डेरा गाजी खान में भी इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी मटीरियल की तकसीम का अमल 1.5 घंटे की ताखीर के बाद बिलाखिर शुरू हो चुका हुआ है। इस वक्त हम लोग डेरा गाजी खान के बलोच लेवी में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ सूबाई और कौमी असम्बली के जो हल्कों के ऊपर जो इंतखाबी मटीरियल की तरसील का अमल है वो शुरू कर दिया गया। अगर मैं डेरा गाजी खान के 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली के हल्कों के ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ थे, हमारे साथ मिराजुद्दीन थे, मुनव्वर थे, जौहर अमीन थे और तारिक महमूद, शीरी हजरत, फैज़ भुट्टी हमारे साथ थे। तमाम तर नुमाइंदगान का शुक्रिया, तमाम तर सूरत हाल से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी ने उलमा और दानिशवरों से मशावरत के बाद इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। ज़ाब्ता इखलाक चेयरमैन रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी खुर्शीद नदीम ने पेश किया। आम इंतखाबात के मौके पर कौमी रहमतुल आलमीन व खातमुन नबीयीन अथॉरिटी ने उलमा, स्कॉलर्स और इस मुल्क के अहले दानिश की मावनत से एक ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया है, जो रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन, कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से माखूज़ है। इसके चंद नकात हैं जिसको हम ज़ाब्ता इखलाक की सूरत में इस मुल्क की सियासी जमातों और आवाम के सामने रख रहे हैं। इंतखाबी मुहिम में अपना पैगाम और मंशूर मुस्बत अंदाज में आवाम के सामने रखा जाए और ऐसी ज़ुबान और रब्बो लहजे के अख्तियार करने से गुरेज किया जाए जो मुरवजा इखलाकी और समाजी अख्तियार से मुतसादिम है। सियासी मुखालफिन को बोए अलकाब से न पुकारा जाए और तनकीद में इस्लाह का पहलू गालिब हो। आवाम से कोई ऐसा वादा न किया जाए जिसको पूरा किए जाने का इम्कान न हो और अपने आहद की पासदारी की जाए। उम्मीदवारों के इंतखाब में दियानत और अहलियत को अवलियत दी जाए। 9 मई का एक और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। साबिक वजीर राजा बिशारत के भाई राजा नासिर ने बगावत का जुर्म कबूल कर लिया है। राजा नासिर 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। 9 मई को राजा नासिर ने लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाया था, मुल्की इमलाक को नुकसान पहुँचाया। राजा बिशारत के भाई राजा नासिर को कल शाम रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।